Hello everyone, welcome back to another video on Aerit Academy. Today we are going to talk about prelims, covering prelims syllabus. And especially अभी prelims का time चल रहा है and people are busy covering the syllabus of UPSC prelims, CSC prelims. चाहे आप इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और if you are preparing for 2025 और जब के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, there are certain things which we need to keep in mind. We often come across these kind of a statement कि सर prelims का syllabus बहुत ज़्यादा है, we have to read everything under the sun, खत्म ही नहीं होता है, we have to read multiple sources of standard books, the current affairs, the test papers, how to consolidate, how to organize it, ये कभी ना खत्म होने वाली चीज़ लगती है. See, completing the syllabus is very, very important. And completing the UPSC Civil Services Prelims syllabus requires systematic study and effective time management strategies. Then only we will be able to complete it, and that too, this systematic approach and effective time management has to be done consistently. Otherwise, you will not be able to finish it ever in this life. So today I am going to tell you very simple 6 advices, 6 step advices I am going to give. आप उसको follow करो. Definitely वो step by step से ही आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. So talking about the first step, you need to create a study plan. Study plan हमारा ऐसा होना चाहिए कि पूरे साल का होना चाहिए, then हफ्ते का होना चाहिए, मंथ का होना चाहिए, then weekly level पे होना चाहिए, then daily level पे होना चाहिए. And you need to devise this study plan in such a manner कि भाई पूरे हफ्ते में मुझे क्या cover करना है. Then you need to break the targets की what should be my daily target. And if this way you are dividing systematically पूरे साल, month wise, week wise and day wise, सबसे पहले तो आपके सामने यही target है कि okay, if I follow this, then by the end of this, quantitatively I will be able to finish this much portion of the syllabus. अब ये subject wise होगा, आपकी जो भी target material है, study material है, books हैं, उसके हिसाब से आप ये targets बनाओगे. So this is the first step, first advice which you need to follow, create a study plan. Second advice would be always use standard books. होता क्या है कि जब आप preparation करना शुरू करते हो prelims की especially and civil services की prelims में we tend to adapt shortcuts. हमें लगता है कि सर कहीं कोई compiled material मिल जाए हमारे लिए अच्छा होगा. सर कौन सी वीडियो देख लें जिस वीडियो से सारी चीजें आसानी तरीके से हो जाएं. वीडियोस का, नोट्स का सप्लीमेंट लो, उनकी हेल्प लो ओनली आफ्टर रीडिंग द स्टैंडर्ड बुक्स. सो यूज स्टैंडर्ड बुक्स. नाउ टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड बुक्स एज वेल, स्टैंडर्ड बुक्स भी आपको पीएचडी नहीं करना है. फॉर एवरी सब्जेक्ट, लेट्स से पॉलिटी की एक स्टैंडर्ड बुक है लक्ष्मीकांत. मॉडर्न हिस्ट्री स्टैंडर्ड बुक, मॉडर्न हिस्ट्री में लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, बट यू हैव टू रीड बिपिन चंद्रा जो मेंस के लिए हम पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी वो बहुत अच्छी बुक है. सो दिस वे यू नीड टू हैव पर सब्जेक्ट 1 or 2 स्टैंडर्ड बुक्स. यू कैन नॉट हैव 10 स्टैंडर्ड बुक्स फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. हैं मार्केट में 10 स्टैंडर्ड बुक्स भी एक सब्जेक्ट के लिए हैं, बट यू डोंट हैव टू रीड दैट, यू डोंट हैव टू फॉलो दैट, बिकॉज अल्टीमेटली पीएचडी नहीं करना है. अदरवाइज दिस लाइफ विल बी शॉर्ट टू कवर एवरीथिंग. हम ये एक जीवन जो मिला है ना वो कम पड़ जाएगा आपके लिए. नाउ ऑलवेज मेक दिस रूल, एक्सेप्ट फ्यू बुक्स, डोंट रीड ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स कवर टू कवर. आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, डेप्थ बढ़ानी है, एट द सेम टाइम कॉम्प्लीमेंट इट. और जो सप्लीमेंट आपको लेना है, कॉम्प्लीमेंट करना है किससे? करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में जो भी ऑनगोइंग चीजें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर टॉपिक की चल रही हैं, यू कॉम्प्लीमेंट योर नॉलेज, यू कॉम्प्लीमेंट द लेटेस्ट डेवलपमेंट with the help of current affairs. This is the second advice for you. Use standard books. Third advice would be whatever you are reading, take notes. होता क्या है, आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो, टेस्ट पेपर्स लगाते हो, अपने कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो, कभी फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हो, यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स, यू आर रीडिंग अबाउट द सेम सब्जेक्ट, सेम टॉपिक from multiple sources, be it your test papers, the synopsis, be it your current affairs, be it your standard books or some extra knowledge, extra Google, extra internet पे जो रिसर्च हो रही है. Now if you don't consolidate these things at one place, last moment में फिर से वही स्ट्रगल होगा कि सर इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं but we are not able to manage the information. So whatever you are reading, take online notes. I would recommend. आप ऑफलाइन लेना चाहते हो, ऑफलाइन में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं इसलिए प्रॉब्लम होती है. So whatever you are reading for a particular topic, for a particular subject, you should have everything at one place so that when you are giving the exam, before exam you just take the printout of all those things or collate everything whatever you have studied for that particular subject or particular topic and then revise. So taking notes will give you confidence and it will help you in effective revision.
एट द सेम टाइम आप एफिशिएंट हो जाओगे, आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फोर्थ एडवाइस वुड बी मेंटेन कंसिस्टेंसी। आपने टाइम टेबल बना लिया, आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, आपने नोट्स लेना शुरू कर दिया, बट इफ ऑल दीज थिंग्स, बी इट योर रीडिंग बुक्स, बी इट फॉलोइंग द टाइम टेबल और टेकिंग नोट्स, इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, सब खत्म हो जाएगा। खत्म इसलिए हो जाएगा, एक दिन करोगे, 5 दिन रेस्ट करोगे, और इफ यू आर स्टडिंग फॉर 10 days, नेक्स्ट 5 days यू आर टेकिंग रेस्ट, सब वैनिश हो जाएगा। ना आप इफेक्टिव रिवीजन कर पाओगे, ना चीजें आफ्टर 1 month जो टारगेट है, टारगेट मिस होने लगेंगे। यू विल गेट ट्रैप्ड इन दैट विशियस साइकिल, जहां आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट नहीं होगा, आपका रूटीन भी फॉलो नहीं होगा, यू विल स्टार्ट लूजिंग टाइम, और फिर एग्जाम जब सामने आ जाएगा आपको लगेगा कि मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं है। फिर अल्टीमेटली आप ये गोल से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। सो मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर रूटीन, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट चेंजेस. See, we always believe, we run our prelims test series, we run our mains test series, we believe in one thing, incremental growth. डेली बेसिस पे जब आप काम करते हो तभी आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ के बारे में कल्पना भी कर पाते हो. कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको 1 महीने बाद समझ में आएगा दैट व्हाट ऑल यू हैव अचीव्ड. सो दिस इज द फोर्थ एडवाइस. सिंपल एडवाइस बट डिफिकल्ट टू फॉलो, लेकिन जब करना शुरू करते हो तो डिफिकल्ट नहीं होता है. नेक्स्ट एडवाइस वुड बी सेट रियलिस्टिक गोल्स. जब आपके रियलिस्टिक गोल होते हैं आप फॉलो कर पाते हो. ऑलवेज सेट अ गोल विच कैन बी ट्रैक्ड. आप उसको ट्रैक कर पाओ, मेजर कर पाओ, क्वांटिफाई कर पाओ. देन ओनली यू विल बी एबल टू measure your progress, your growth, and whatever your progress is, चाहे वो जितनी भी छोटी हो, अगर वो प्रोग्रेस है और अगर वो ग्रोथ है, यू शुड सेलिब्रेट. दैट विल गिव यू बूस्ट. आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेशन देगा. सो सेट रियलिस्टिक गोल, मेजर इट, प्रोग्रेस को देखो कैसा हो रहा है, सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस एंड फॉलो द सेम वर्चुअस साइकिल. एंड द लास्ट एडवाइस वुड बी स्टे हेल्दी. एक स्मॉल हेडेक भी अगर आपको हो जाता है ना, दैट विल ruin योर डे. Forget about some illness. So stay healthy. अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ताकि आपकी एनर्जी मेंटेन रहे. स्पेशली जब भी विंटर्स हो या समर्स हो, सीजन के हिसाब से एनर्जी रहनी चाहिए. अदरवाइज एक छोटा सा भी हेडेक हमारा पूरा दिन खराब कर देता है. हमारे जो टारगेट्स हैं, जो हमारी साइकिल है, जो कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी है, सब कुछ बेकार हो जाती है. So follow these 6 simple advices. Definitely it is going to help you, and these are not something which you cannot do, but it takes courage, it takes mindset to follow these things. So quickly ये सारी 6 चीजें आपको ध्यान में रखनी है. Do it. I promise you that if you follow it consistently in this manner, definitely you will have a different कॉन्फिडेंस ऑल टुगेदर, और जो सिलेबस है वो भी इजीली कवर हो जाएगा. नहीं कवर होगा फिर आप मुझे बताना, आप हमारी हेल्प ले सकते हो कि सिलेबस कैसे कवर किया जाए. राइट. सो ऑल द बेस्ट. Maintain this routine, follow these things. Whatever we are telling from our experience. We have seen so many students with the similar problems. That's why we are telling you these small yet effective tips which will change your preparation altogether. See you all the best. We will meet in the next video.